सुन पा रहे हैं? Good morning, everyone. Hope you all are doing fine. I am Neha Parihar, currently studying at Government Medical College, Bardmer. I request you all to keep your mics and cameras off during the webinar. If you have any queries, you can type them in the text box. Sir will answer them at the end of the session. Personality is what makes us. We all have a unique style of speaking, of thinking, of clothing, and have different feelings. And all these things makes our personality, which makes us unique. That is different from others. I remember a saying, you can change your looks a little bit, but the good news is that you can completely change your personality. And here, we all have gathered to change our personality. So let's look within to go beyond. Our today's speaker is Mr. Saurabh Kataria. Sir is currently working as a lecturer in Institute of Hotel Management, Government of India. Sir has pursued his MBA in Human Resources. He is a certified hospitality trainer and educator and a personality development expert. So I let it over to Kataria sir. Sir, please continue. Thank you, Neha, for such a generous introduction. I'm slightly uncomfortable with this new machine. तो क्या आप लोग एक बार कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज क्लियरली आप तक पहुंच रही है? Yes, sir, your voice is audible. Very well, very well. So we shall begin. As I have been told that most of the people that have joined us today, they are veterinary science doctors, and most, I mean, a few are going to be doctors, a few are already are there. तो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जी आपके जितना हाई एंड इंटेलेक्ट तो मैं नहीं था, जब तक बायोलॉजी मैंने भी पढ़ी तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की और डॉक्टरी जैसा डिफिकल्ट करियर परस्यू करने की. सो somehow Dr. Rahul and his team, they chose me to present you a few of my views on personality development because they think that I belong to such an industry. I belong to hospitality. हम लोग hotels के लोग हैं तो हम कपड़े वपड़े बहुत अच्छे से पहनते हैं, अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोल ले रहे हैं, प्रोफेशनली ट्रेन हमको इन चीज़ों में किया जाता है. बट I'm nobody to tell you कि आप कैसे एक डेवलप पर्सनालिटी बने. मैं क्योंकि मुझे एक टास्क मिला है डॉक्टर राहुल और उनकी टीम के द्वारा, तो मैं अपनी तरफ से इस टॉपिक को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा. मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि मैं आपके जितना तेज दिमाग कभी नहीं था. थोड़े से बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में, क्योंकि आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री में पिछले 17-18 साल से काम कर रहा हूँ, तो कुछ एक चीजें जो समय के साथ मैंने सीखी हैं मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगा. द वे यू पीपल हैव यू नो पुट ऑन योर क्वेरीज, आपने जिस तरह से वो गूगल फॉर्म्स पे रजिस्टर करते टाइम अपनी बातें जो लिखी हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव मेंशन्ड द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट एंड a few key areas कि हम पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें, और हम उन्हीं कुछ एक की चीज़ों पे आज बात करेंगे. और आज का सेशन जो है बहुत ही जो आज का उद्देश्य है हमारा इस सेशन का, वो बिल्कुल ही सेंसिटाइजेशन बेस्ड रहेगा. मतलब मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसा जो सब्जेक्ट है उसके प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना और कुछ एक आपके विचारों को उत्तेजित करना, इतना सा काम आज के छोटे से समय में करना चाहूंगा. मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं करूंगा कि आप अगले 45-40 मिनट में जो है बहुत डेवलप पर्सनैलिटी बन जाएंगे और आपको सब पता हो जाएगा. और वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है जो कि हम बाद में इसकी बात करेंगे. छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या होते हैं. आज का जो सेशन है मुख्यतया डील करेगा कि
ये कंसेप्ट एक्चुअली है क्या, एंड व्हाट आर वी एज ह्यूमंस सपोज्ड टू डू. So before I begin, I would like you to confirm whether you are able to see my screen or not. Just a moment, मैं जरा PPT एक बार adjust कर लूँ. Kindly confirm if you are able to watch my screen completely. Yes, sir, it is visible. Very well. Thank you, Mayank जी, फॉर पार्टिसिपेटिंग. यही चाहिए एक सेशन में दोस्त. ऑनलाइन ने हमको यही सिखाया है कि जितना हो सके पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इंटरेक्शन का मौका पता नहीं अगला पेंडेमिक दे या ना दे. I thank all the people who are texting in the message group, and you can text your questions in between also. At the end of the session we will take those questions, and I hope that you participate to the maximum. और ये वाला जो तरीका है हमको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, टेक्स्ट करने वाला. इसमें क्या है कि बाकी पूरा क्राउड डिस्टर्ब नहीं होता है और हम अपनी बात कह भी पाते हैं, पूछ भी पाते हैं, और जो सेशन को मोडेट कर रहा है या यूँ कहें कि गेस्ट टॉक दे रहा है उसको हम पूरा मौका भी देते हैं कि अपने थॉट्स को गैदर करके आपको आंसर कर पाए. तो here is this. now एक बार और कंफर्म कर दीजिए. अब क्या प्लीज वॉइस पे कीजिएगा, क्योंकि मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ ना आपके मैसेज. क्या ये स्लाइड स्क्रीन आपको विजिबल है? Yes, it is visible. All right. So this is a PDP session, Personality Development Program, introduction session for Veticos Advanced Learning, the platform where you all people have joined us. Before we begin, we need to understand this term first. Personality. हम इससे क्या आशय लगाते हैं, होता क्या है personality? Primarily, personality combines of these two factors: how people affect others. लोग दूसरे लोगों को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, और दूसरा हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्व्स. अपने आप को कितना समझते हैं और अपने आप को किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं. वो लोग जो कि खुद के प्रति बहुत ही नेगेटिव छवि रखते हैं, वो बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटीज नहीं होते, या आप ही जानते हैं. और वो लोग जो कि खुद को बहुत पसंद करते हैं, दे डू वेल इन मोस्ट ऑफ द स्फीयर्स ऑफ लाइफ. या अपने घर परिवार में, अपने आसपास में, हर जगह इस तरह होता हुआ देखते हैं. तो प्राइमरीली पर्सनालिटी जो है उसकी परिभाषा ये है कि किस प्रकार से लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं और किस तरह से अपने आप को देखते हैं. अब इससे होता क्या है पर्सनालिटी से? पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है कि हम किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे और किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे टू द वर्ल्ड. Now please pay attention to these two keywords, interact and respond. मैंने बहुत ही कैटेगरिकली इनको चूज किया है और पहला लेटर बोल्ड करके भी लिखा है, जैसा कि आप समझदार लोग समझ पा रहे होंगे. एक्शन रिएक्शन हमारा जनरल बिहेवियर है, और इंटरेक्शन हमें अपने अलावा बाकी और लोगों से करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ हमेशा खुद से ही बात नहीं कर सकते. टू लिव द लाइफ वी नीड टू बी इन कम्युनिकेशन विद अदर्स ऑल्सो. और आज का जमाना तो वो है कि जब हम इंसानों से ही नहीं, हम मशीनों से भी बहुत ज़्यादा संवाद करते हैं. और जब आप लोग बड़े होंगे, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मशीनों से ही बात करेंगे हम. सो दैट इज हाउ इंटरेक्शन वर्क्स. द सेकेंड वर्ड, रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड मैंने बहुत कैटेगरिकली चूज किया, पहले मैंने रिएक्ट लिखा था. रिस्पॉन्ड का मतलब होता है
कि हम सोच विचार के, प्लान करके जब रिप्लाई करते हैं तो रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन होता है क्विक। मैं साइकिल चला रहा हूँ, आगे कोई बच्चा आ गया फुटबॉल लेके हाथ में, तो मैं रिएक्ट करता हूँ। मेरा हाइपोथैलेमस करता है उस काम को, रिएक्शन है, फटाक से ब्रेक लग जाएगा, साइकिल रुक जाएगी, बच्चे को चोट नहीं लगेगी। रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कोई भी चीज मैं बिल्कुल रिएक्शन के तौर पे ना दूं, रिस्पॉन्ड करूं। सामने वाले ने क्या कहा है पहले उसे सुनूं, उसे समझूं और फिर जवाब दूं। मेरा सोचा समझा जवाब जो है वो दुनिया को मेरा रेस्पॉन्स है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है कि आप किस तरह से दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे और किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। ये एक छोटा सा कोट आप लोगों के लिए, आप पढ़ लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है इसको रीइटरेट करने की। और जब आप इसको एक बार एसिमुलेट कर लें तो जरा वॉइस नोट एक छोटा सा डाल दीजिए कि सर आगे चलो, फिर बात करते हैं। यार लाइन पढ़ने में इतनी देर लगाते हो, कोई नहीं बोलेगा। हेलो, hope people are still there. Getting back to the quote, I would appreciate if somebody asks me to move further. Shall we or shall we not? Sure, sure. All right. These are a few, text things, क्योंकि आप लोग तो डॉक्टर्स हो, आप तो इन चीज़ों को पसंद करते हो, etymology and history and the technical definitions. I would not repeat it. You please read it by yourself. My topic of discussion is this thing. If personality is so stable, देखिए हमने ऊपर कहा ना, the relatively stable feelings, thoughts and behavior patterns a person has. So if personality is so stable, does it mean that it does not change? Now I would like you to participate. आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि क्या पर्सनल बिहेवियर और पर्सनैलिटीज चेंज की जा सकती हैं या एटीट्यूड्स परमानेंट होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? ये पहला पॉइंट है आज के डिस्कशन का मेरा, जो कि आप अपने आप पे फोर्स कीजिए कि अगर इस तरह के सेशंस में बोलना नहीं सीखेंगे तो इस तरह के सेशंस अटेंड करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। देखो सही गलत कुछ नहीं होता, पार्टिसिपेशन जरूरी है। अपने ऊपर ये वो बोझ जो है ना तुम्हारे पे कि मैं बोलूंगा तो पता नहीं वो सही होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, कोई हंसेगा तो नहीं। थ्रो दीज थॉट्स आउट ऑफ द विंडो मैन। किसी को नहीं पता आपका नाम क्या है और किसी को नहीं पता कि आप घर जाके क्या करते हो। प्लीज पार्टिसिपेट, क्योंकि यहाँ आप ये बताओगे। यस, गुड गुड। सो मयंक जी कह रहे हैं दैट वी कैन चेंज आवर बिहेवियर, दीप कह रहे हैं वी कैन चेंज आवर पर्सनालिटी, मयंक कह रहे हैं इट्स नॉट स्टैटिक। वेरी गुड। As the speaker of today, I will definitely agree with you all. ये बहुत ही पॉजिटिव रहा कि किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा कि एटीट्यूड्स चेंज नहीं होते। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने एक ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया था, मैं काफ़ी रिसर्चर टाइप का मेरा वो है नोशन, दो एप्टीट्यूड जो है वो उस तरीके का है। सो मैं रिसेंटली उन दिनों, इन दोज रीसेंट टाइम्स, नॉट टुडे, recent, I came across some article from some scientists in let's say USA. They had proved via research that attitudes cannot be changed. तो आप लोगों ने जैसे लिखा कि हम चेंज हो सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया था कि नहीं, एटीट्यूड्स चेंज नहीं हो सकते। मैं वो जो पेपर है उसके प्रभाव में था बहुत ही। और हालांकि फिर काफ़ी डिस्कशन हुआ जो मॉडरेटर थे उनसे, और काफ़ी जगह उन्होंने मेरी बात मानी, काफ़ी जगह मैंने उनकी बात मानी। Finally, we agreed on one point. That was basic instinct हो सकता है कि परिवर्तित नहीं हो सकती।
पर पर्सनालिटी जो है, द वे वी कम अक्रॉस द वर्ल्ड, इट कैन बी मोल्डेड। आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि आप किस तरह की पर्सनालिटी है। द मैन हु इज टॉकिंग टू यू इज 100% इंट्रोवर्ट। मैं मेरे बचपन से अब तक अगर मैं बताऊं तो मुझे ये नहीं पता कि बोर होना क्या होता है। मैं खुद के साथ बहुत खुश रहता हूँ। हम किसी पब्लिक टूर या ऑफिशियल टूर या एक फैमिली गैदरिंग पे जाएं तो आई एम एन एब्सोल्यूट लोनर। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। और मेरी जॉब प्रोफाइल एक टीचर की है और मैं होटल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में टीचर हूँ। तो मैं दिन भर जो मेरी जॉब के साथ जस्टिस करता हूँ वो ये है कि मैं लोगों से हंस हंस खेल के मिलूंगा, अच्छे से बातें करूंगा, और मेरी इंडस्ट्री यही सिखाती है। तो मैंने पिछले 16-17 साल से यही किया है। तो मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट जो है भले ही इंट्रोवर्ट है, लेकिन आज मेरे स्टूडेंट, मेरी इंडस्ट्री, द पीपल हु नो मी, दे परसीव कि ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ इंसान है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सब लोगों के साथ सहमत करता हूँ होता हूँ कि पर्सनैलिटी आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से ये लैटिन लैटिन फ्रेज जो कह रही थी, दैट पर्सोना मीनिंग मास्क, you can mask your original feelings, there is no harm about it. The answer is personality changes. It does. Change occurs, man. The change is the only constant. ये सब तो आप लोग भी बोलते रहते हैं। So that was a brief of what are we going to talk about. This is my favorite section of today's discussion, human behavior के rules. देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, अब अगर हम उसको एक कोर्स की तरह या एक बड़े डिस्कशन की तरह लें तो उसके बहुत सारे एवेन्यूज हैं। एक 4 घंटे की क्लास होती है कपड़े कैसे पहनने हैं उस पर। एक 4 घंटे की क्लास होती है इंग्लिश कैसे बोलनी है उस पर। एक 4 घंटे की क्लास होती है कि एटिकेट्स कैसे दिखाने हैं उस पर। एक क्लास होती है कि खाना कैसे खाना है। एक होती है बिजनेस मीटिंग में कैसे मिलना है। एक होती है मार्केटिंग, एक होती है सेल्स। ये बहुत बड़ा स्फीयर है। वो फिर आप इस सब्जेक्ट में तो कुछ भी जोड़ सकते हो ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो आप वेटनरी साइंस भी जोड़ सकते हो। जानवरों का इलाज कैसे करना है, जितना अच्छा इलाज करो उतनी बेहतर पर्सनैलिटी हो। सो एंडलेस है। बट आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट विल बी फोकस्ड अपॉन ह्यूमन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, पर्सनैलिटी, द वे वी कम अक्रॉस जो है हमारे, वो आज के हमारे ये अगले 30-40 मिनट के डिस्कशन का मुख्य मुद्दा रखेंगे। So here, human behavior rules. Please read once. I'm coming back to the main screen and then we will talk on voice. I want some of you to interact with us. इससे क्या समझते हैं? Treat others the way you want to be treated. आज शुरुआत कर रहे हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। बात करो। Come on, speak up. अरे हिंदी में बताओ इसका। Sir, it means that Nobody will do that. I'll आप have to लोगों force से either कैसे Neha or मतलब Rahul. चाहते हो वैसे ही आप उनके साथ बिहेव करो। लाइक Exactly. अगर आप नहीं चाहते कोई हम्म। आपसे रूड हो, कोई झगड़ा करे, तो आप भी उनसे पोलाइट और सॉफ्ट रहो, झगड़ा मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप दूसरों को वैसे ट्रीट करें जैसा ट्रीटमेंट आप खुद के लिए चाहते हैं। ये गोल्डन रूल है ह्यूमन बिहेवियर का। दोस्तों, ये तो बात थी पर्सनालिटी की। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आते हैं। इससे बेहतर भी एक रूल है। क्या आप में से कोई मेंशन करना चाहेगा? चलो मैं हिंट देता हूँ। ये गोल्डन रूल वर्सेस प्लैटिनम रूल। एनीबॉडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट हियर? और ये कमाल की चीज है, द प्लैटिनम रूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी हम रिपीट करते हैं एक बार फिर से। नेहा ने भी बताया कि आप खुद के साथ जैसा बर्ताव चाहते हैं लोगों द्वारा, आप वैसा उनको ट्रीट करें। यू ट्रीट अदर्स द वे you want to be treated. Now, my friends, and of course, the very well
intellects and well-read doctors like you are, please take a paper and pen and note down. The platinum rule is treat others the way they want to be treated. I repeat it once again. Golden rule था treat others the way you want to be treated, और उसको नेहा ने एक्सप्लेन भी किया. प्लैटिनम रूल है जो कि उससे बहुत बेहतर है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है. ट्रीट अदर्स द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड, इसको वो एक्सप्लेन करना चाहेगा. मतलब सामने वाले के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. मयंक जी थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेते हैं. वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं, वो चाहता है कि आप उसके साथ ऐसा बिहेव करो. देखो कितना डिफिकल्ट काम है ये, पर अगर आप ये अचीव कर लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है. आई थैंक यू मीना जी फॉर पार्टिसिपेटिंग. आपने बहुत ही मेरा जो है वो मोरल बूस्ट किया है, और भले ही मैं आज आपका ट्रेनर हूँ लेकिन मोटिवेशन की जरूरत तो मुझे भी है. काफी देर से मैं लो फील कर रहा था कि कोई बात नहीं कर रहा मुझसे. थैंक यू मयंक फॉर टॉकिंग. सो द प्लैटिनम रूल, ट्रीट अदर्स द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड. अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा. मैं एक दोस्त की बाइक लेके गया मांग के, यार वो यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म भरने जाना है, आज लास्ट डेट है, तेरी बाइक दे दे, बस से जाऊंगा तो हो नहीं पाएगा काम. बाइक ले गया, वापसी में बाइक स्लिप हो गई रोड पे मुझसे. अब बाइक स्लिप हो गई, बाइक में नुकसान हो गया. मुझे जो चोट लगी वो कोई बात नहीं, एक अलग बात है. अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त मुझसे किस तरह से बिहेव करे. तो मेरी जो सोल थॉट है उस समय वो ये है कि मेरा दोस्त एक बार ये बोल दे कि चल कोई बात नहीं यार, इंश्योरेंस है ना बाइक का, ठीक करा लेंगे. पूरे रास्ते में ये प्रार्थना करता हुआ रहा हूँ कि वो एक लाइन बोल दे, अरे यार इंश्योरेंस में ठीक कर लेंगे, कहाँ तो चिंता कर रहे. इस तरह से मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ट्रीट करे, और मैं उसके रूम पे पहुंचता हूँ और वो यही सेंटेंस बोल दे, तो उसने गोल्डन रूल अचीव कर दिया जी. जीत ली उसने उस समय दुनिया, और ऑफ कोर्स मेरी दोस्ती और मेरा विश्वास. तो दैट इज द थिंग, ट्रीट अदर्स द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड. इसके लिए आपके पास एक बड़ा पूल ऑफ नॉलेज चाहिए, क्योंकि कौन इंसान कैसे ट्रीट होना चाहता है वो एक बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स गेम है. एक टीचर अलग तरीके से ट्रीट होना चाहता है, एक स्टूडेंट अलग तरीके से ट्रीट होना चाहता है, एक गर्लफ्रेंड अलग तरीके से ट्रीट होना चाहती है, मदर अलग तरीके से ट्रीट होना चाहती है, मेरा ऑटो वाला अलग तरीके से ट्रीट होना चाहता है, मेरे बच्चे की स्कूल के प्रिंसिपल अलग तरीके से ट्रीट होना चाहती है, मेरा खुद का बॉस अलग तरीके से ट्रीटमेंट चाहता है. अब वो कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना, किस प्रोफाइल पे इंसान की क्या नीड होती है, मैं उनको उस तरीके से ट्रीट करूं, दैट इज द रियल अचीवमेंट, अ डेवलप्ड पर्सनालिटी वी से. तो दैट इज योर गोल, दैट इज वेयर यू हैव टू रीच. मैं चाहता हूं कि आप वहां तक पहुंचे, और ये रोज की मेहनत है दोस्तों. ये कि एक दिन अचानक कुछ कमाल का होगा और दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये सिर्फ बॉलीवुड में हुआ है. When I was young like you, I also used to think कि वो एक दिन एक लड़की सड़क पार कर रही होगी, मैं उसे एक टाटा सुमो से टक्कर होने से बचाऊंगा, दुपट्टा हवा में लहराएगा और प्यार हो जाएगा. और वो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं. रियलिटी में क्या होता है, आई हैव टू चूज अ पार्टनर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर एवरी डे, एंड उसकी छोटे छोटे नखरों से लेके उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों तक हर चीज का मैं हिसाब रखूं, बहुत साल तक मेहनत करूं, कभी वो सेक्रीफाइस करे कभी मैं करूं, तब जाके प्यार हो रहा है. अब रियलिटी तो ये है, रियलिटी ऑफ बीइंग अ हीरो इज एन एवरीडे जॉब. वो स्नैप ऑफ द मोमेंट में सिर्फ फिल्मों में होता है. हमारे यहाँ क्या है, रोज की मेहनत. रोज की मेहनत खुद को कल से बेहतर बनाने की, और वो जो रोज की मेहनत है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. नाउ we shall come back to our presentation. Storytelling नाम से एक स्लाइड है.
जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं, एक इंसान है, कहानी सुना रहा है, आग जल रही है, कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं. आई हैव वेरी ब्यूटीफुल थॉट अबाउट इट. It's a quote rather. You are never going to kill storytelling. Please listen to me carefully. You are never going to kill storytelling because it is built in the human plan. We came with it. Margaret Atwood, Handmaid's Tale. क्या है स्टोरी टेलिंग में, मतलब क्यों इस चीज को इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ? The way we humans have evolved, or let's say we, the Homo sapiens, हमारे पास बाकी लोगों से सिर्फ एक ही चीज बेहतर थी, कहानियां बनाने की क्षमता. दो चिड़िया एक नदी किनारे बैठ के ये बात कर सकती हैं कि सामने शिकारी बैठा है, बचो. They can talk in present tense only. पर होमो सेपियंस, जो कि हम और आप हैं, हमें कुदरत ने एक कैपेबिलिटी दी दैट वी कैन टॉक. संडे सुबह 11 बजे बैठ के इस नदी के किनारे एक शिकारी सैंडविच खा रहा था, और बात यहां खत्म हो जाती तो बात और बात यहां खत्म नहीं होती है. कहानी बनाने की क्षमता के साथ कहानी पे विश्वास करने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी बात. When my friend tells me संडे सुबह 11 बजे इस नदी के किनारे एक शिकारी बैठ के सैंडविच खा रहा था, मैं उसको इमेजिन कर पाता हूं और मानता हूं कि वो सत्य है. पैसा पैसा भी तो कहानी है, कुदरत ने थोड़ा ना बनाया था. कुदरत ने बनाया था सेब, केले, गेहूं, खरगोश, हिरण. डॉक्टर मयंक जो है मुझे एक हिरण दे दें, बदले में उनको 10 किलो सेब दे दूंगा. कुदरत ने सिर्फ ये बनाया था. अब मैंने और डॉक्टर मयंक ने मिलकर क्या किया, हमने बनाया एक 100 का नोट और उसकी वैल्यू डिसाइड करी कि 100 के नोट में आधा हिरण आता है और 8 किलो सेब आते हैं. ये 100 का नोट सिर्फ एक कहानी है, एक कुदरत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. अभी बात नेगेटिव नहीं है, 100% पॉजिटिव. पॉजिटिव इस तरह से कि हमारी एक क्षमता इतनी ज्यादा विकसित हो गई है कि हम वो हंटर गैदरर्स जो कि हम हुआ करते थे जंगल में, कंदमूल खाने वाले, अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टेन लोग, हम आज इतना डेवलप हो गए हैं कि हम शेयर मार्केट जैसी चीज चलाने लगे हैं. और मैं आज से 25 साल बाद का फ्यूचर सोचने लगा हूं. मुझसे 3000 साल पहले के मेरे पूर्वज ये सोच भी नहीं पाते थे कि 25 साल बाद क्या होगा. कल का नहीं पता होता था. और अब तो इस तरह की थीम्स आ गई हैं कि मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. मेरा कुछ भी हो, 25 साल बाद क्या होगा ये मैं पहले से डिसाइड करके जा सकता हूँ. दिस इज द डेवलपमेंट वी हैव अचीव्ड. इतना जब हम इतिहास में आज से आगे यहाँ तक आ गए हैं, कौन कहता है कि हम डेवलप्ड पर्सनैलिटीज नहीं है? हम सभी हैं ऑलरेडी. और जिन चीजों पे आप आज फोकस करना चाह रहे हैं, जो एक चीजें आपको लगती हैं कि कुछ एक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उनकी हम बात धीरे धीरे शनय शनय इसी वीडियो में आगे करेंगे. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी टेलिंग थिंग, वी नीड टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स हियर. द अर्थ एंड होमो सेपियंस. दोस्तों, अगर मैं धरती की जर्नी को पिछले 24 घंटे में कन्वर्ट करूं, जब से मदर अर्थ का जन्म हुआ, और मैं बोलूं कि तब से लेके आज तक का समय जो है वो 24 घंटे है, तो हम ह्यूमंस यहाँ सिर्फ पिछले 20 मिनट से हैं. पिछले 23 घंटे 40 मिनट दिस अर्थ वॉज विदाउट ह्यूमंस. मैं शुरुआत से आज तक की बात कर रहा हूं. श्रिंकिंग दोज बिलियन ऑफ ईयर्स इन अ टाइम ऑफ 24 आवर्स. और पिछले 20 मिनट में हमने क्या किया है? इस 24 घंटे की जर्नी में हम 7.6 बिलियन पीपल अर्थ पे आज रिजाइड करते हैं, और हम टोटल लिविंग थिंग्स का 0.01% है. डॉक्टर्स, आपको तो ये बात पता ही होगी. वी द 7.6 बिलियन पीपल are just 0.01% of all the living things, according to a study. Yet since the dawn of civilization, जब से सिविक सभ्यता या वर्ल्ड में अलग अलग सभ्यताओं की शुरुआत हुई, तब से अब तक humanity has caused the loss of 83% of wild mammals and half of the plants.
24 घंटे की धरती में हम पिछले 20 मिनट से आए हैं और 20 मिनट में हमने 83% प्रजातियां जानवरों की और आधे पौधे खत्म कर दिए। कितने पावरफुल लोग हैं हम ऑलरेडी इतने पावरफुल हैं, हमारी जीन्स में ऑलरेडी इतनी क्षमता है। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसा एक टास्क हमारे लिए मुश्किल होगा? मुश्किल हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो प्रजाति ही वो है जिसको सर्वाइवल आता है। तो जंगल का राजा शेर है, ऐसा बचपन में सिखाया जाता, सब पिंजरे में रहता है हमारे यहाँ। So you are belonging to that breed. That is what the theme of today's session was. हिस्ट्री में झांको, खुद के अंदर देखो और फिर आगे बढ़ो। We all have it in us. You all have it in you. Now, ये तो बात हो गई अर्थ और होमो सेपियंस, हमारी छोटी सी हिस्ट्री, हमारी कहानी, हमारा अच्छा बुरा। अब ये कहाँ से चीज आई? सिविक सेंस। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किसी की पर्सनालिटी ने मुझे प्रभावित किया, किसी की पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है, तो वी नेवर ड्रीम ऑफ बिकमिंग जयकांत शिकरे ऑफ सिंघम। डेवलप्ड पर्सनालिटीज की बात करने में हर कोई सिंघम ही बनना चाहता है भाई, जयकांत शिकरे नहीं। क्यों? जयकांत शिकरे के पास सिविक सेंस का अभाव था। सिविक सेंस क्या है? हम ऑर्डर और केओस में से किस चीज को चुनते हैं? केओस है अनकंट्रोल्ड, भाग 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 दौड़, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, होना भी चाहिए या नहीं। और ऑर्डर है तरीके से, ऑर्गेनाइज मैनर में। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, नीचे वाला एक और पॉइंट पहले उठा लूं, एथिक्स वर्सेस मार्केट। मार्केट आज हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ जो है वो है पैसा, और उस पैसे से आज का हमारा सबसे बड़ा सत्य जो जन्मा है वो है मार्केट। आप सारे के सारे कंज्यूमर हैं जी। कंज्यूमरिज्म आज की दुनिया का धर्म है जी। दुनिया में सारे धर्म अगर किसी दिन समाप्त भी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा मुझे, मैं कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, अगर किसी दिन सारे धर्म समाप्त भी हो जाएंगे, ये चलेगा। मार्केट, पैसा और कंज्यूमर, कोई चीज बना रहा होगा, कोई उस चीज का कंज्यूमर होगा और मनी का फ्लो हो रहा होगा। तो मार्केट बेसिकली श्रूड है, रूड है। वहां टारगेट्स हैं, सेल्स है, कंज्यूमर्स हैं, उनको बेवकूफ बनाना भी धंधे का एक पार्ट है। तो क्या हम एथिक्स को वैल्यू देते हैं या हम सिर्फ मार्केट के गुलाम बन जाते हैं? या फिर हम ऑर्डरली हैं या हम केओटिक हैं? ये कुछ एक चीजें हमें तोलनी होती हैं जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट की तरफ डील करना चाहते हैं। तो केओस वर्सेस ऑर्डर में एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त सेल्समैन हूं। एक कार सेलिंग ब्रांड का मर्सिडीज की गाड़ियां बेचते हैं भैया, और मेरा जो मंथली टारगेट होता है वो होता है कि तुम 85 लाख की गाड़ी बेचो, और हर साल हर महीने में मेरी कंपनी को 2 करोड़ की गाड़ियां बेच के देता हूँ। गजब का सेल्समैन हूं मैं। ये मंडे से फ्राइडे की बात हो रही है। सैटरडे मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूँ एक स्पीड पोस्ट कराने, मेरे बच्चे के स्कूल का एक फॉर्म, या मेरी सिस्टर की तरफ से एक राखी मेरे बड़े भाई को विदेश में, एक स्पीड पोस्ट कराने जा रहा हूँ। डाक खाने में 18 लोग आगे लाइन में लगे, और वहां पे स्पीड पोस्ट काउंटर के पीछे जो अफसर साहब बैठते हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, मित्र हैं मेरे। उन्हें मैं इशारा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस लाइन में से जो है मैं सरक के वो 17 लोगों से आगे चला जाऊँ, दूसरे तीसरे नंबर पे। सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, पीछे कोई अफसर मेरा मित्र नहीं है, मैं लाइन में लगाऊं और मैं खुद ही ये डिसाइड करता हूँ यार महीने की 2 करोड़ सेल करने वाला, कंपनी से 3.25 लाख तनख्वाह लेने वाला आदमी, मैं इन लोगों के साथ लाइन में लगूंगा? नहीं, मुझे तो जंप करके आगे चला ही जाना चाहिए। मेरे जीवन में बहुत काम है, लोग फ्री हैं, लगे रहेंगे लाइन में, और मैं जाके किसी अंकल आंटी को कंधा मार के जैसे तैसे अपने आप को लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं डेवलप्ड पर्सनैलिटी नहीं हूँ दोस्तों।
ये चीज आपको प्राइमरी तौर पे यहाँ समझनी पड़ेगी। सिविक सेंस से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का थॉट जुदा हो ही नहीं सकता। अच्छी सेल करना, अच्छी बात करना, लोगों को इम्प्रेस करना, अगर आप सिर्फ उसको पर्सनल डेवलपमेंट मानते हैं तो बहुत ही गलत शुरुआत। सिविक सेंस से पर्सनल डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। वहां 17 लोगों की लाइन में मैं चुपचाप 18वें नंबर पे लगूं। अगर आज मेरे पास समय नहीं है तो मैं कल दोबारा आऊं। वो 18 लोगों की लाइन अगले 40 मिनट में खत्म होती, 40 मिनट में नंबर आए तो मैं एक्चुअली एक डेवलप्ड पर्सनालिटी हूं। आई हेल्प्ड मेंटेनिंग द ऑर्डर। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर टॉक्स हियर। बिकॉज चलो, ये ऊपर एक बहुत सुंदर कोट आ गया, हिस्ट्री इज सोशियोलॉजी इन मेकिंग। इतिहास में पुराने जमाने से लेके अब तक जब हम घटनाएं उठा के देख रहे हैं तो आज की जो सोसाइटी है वो इतिहास ही तो है। एक्चुअली सोशियोलॉजी इन मेकिंग is the subject called history, and we need to understand it. There are a few things which are there in our genes. There are a few reptile instincts also we have. There are a few pious thoughts. We are quite good at a few moments. ये सारा क्रेडिट हमारे मानव इतिहास को ही जाता है, जिस तरह से हमारे जीन्स पिछले कुछ हजार सालों में डेवलप हुए हैं। So that was the basic pitch of this session. Now, a few things when we talk of personal development per se, what are we supposed to go through? I want कि आप इन चीजों को कहीं एक पेज पे नोट कर ले, फिर मैं एक एक टर्म की बात अगले 2-2 मिनट में फटाफट करूंगा। Some factors to look upon when you are opting for a course like personality development or a thought like personality development per se. Openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and neuroticism. If you've noted it once, we'll talk further. Noted? Yes or no? Yes, sir. Good, good. थैंक यू सत्य प्रकाश जी। अगर आप प्लीज मुझे 2 मिनट का समय लें, थोड़ा सा पानी पी के आ जाएं। काफी देर से बोल रहा हूँ, है ना। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं दोस्तों। 11:55 हुआ है, 3 मिनट कर लो। चलो, 11:58 विल मीट अगेन। थैंक यू। Okay, Mayank, I'll do that for you. Just a moment. Let's say openness, first one. Consciousness,
version, agreeableness, and neuroticism. We're meeting again in next 1 minute. So we all are back. I hope. Yes or no? Yes, sir. Right. Okay. So the first term was openness. What do you mean by openness? Personal development में क्यों जरूरी है? Openness is actually the degree to which a person is curious. Curious, जिज्ञासा, curiosity is the best teacher. उससे बेहतर कोई अध्यापक नहीं है, उससे बेहतर कोई गुरु नहीं है. आप अगर क्यूरियस हैं तो आप 50 चीजें सीखते हैं. क्यूरियस नहीं है आप वो कुछ नहीं सीख सकता. ओपननेस का मतलब होता है कि आप कितने क्यूरियस हैं, कितने ओरिजिनल हैं, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितना आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को यूज करते हैं, कितने आप क्रिएटिव हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी आप नए आइडियाज को लेके कितने ज्यादा ओपन हैं. जो लोग ओपननेस में हाई होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं नई स्किल्स को सीखने के लिए, और वो बेहतर करते हैं किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेशन में. लाइक थोड़ी देर पहले मैंने जब कहा कि आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, तो आप में से 75% ने ऐसा तय किया कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट. फाइन. 25% थे जिन्होंने कहा कि हाँ हम ओपन हैं इस नए आइडिया के कि पार्टिसिपेट करना चाहिए. दैट वाज पॉइंट नंबर 5. यू हैव टू बी ओपन इफ यू वांट टू डेवलप फर्दर. हैव टू बी जैसा कोई सीन नहीं है, आप डेवलप ना होना चाहें तो कोई बात नहीं. पर I assume that every one of you who has joined this webinar is willing to do better. So that was the first point of our discussion, openness. Next is conscientiousness. किस डिग्री तक एक इंसान जो है ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, पंक्चुअल है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंडेबल है. आपका कॉन्शियस कितना अच्छे से काम करता है उससे डिसाइड होता है कि आप कितने डिपेंडेबल हैं. डॉक्टर राहुल अगर आज मुझे कहते हैं कि एक आपको सेशन लेना है सुबह 11:15 बजे, और मैं उन्हें 10:20 में फोन करूं कि मेरे बच्चे ने मेरा लैपटॉप बेड से नीचे फेंक के तोड़ दिया, राहुल आज का सेशन शाम को पोस्टपोन कर दो, तो दोस्तों मैं डिपेंडेबल नहीं. इट्स माय जॉब to arrange for something else and be present at 11:15 sharp.
So that is how my conscience works here. Nanda Kumar ji, we will talk about it in the end. Thank you for such a beautiful question. बहुत अच्छे से phrase किया आपने. All right. Point number 3 is extroversion. Extroversion is the degree to which a person is outgoing, talkative, sociable, enjoys being social, enjoys being at social situations. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं. बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोग आपको ये सिखाते हैं कि या तो एक इंसान इंट्रोवर्ट होता है या एक्सट्रोवर्ट होता है. ऐसा हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं. द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, मी माई सेल्फ, मैं एक 100% एब्सोल्यूट लोनर हूँ. अकेले रहना पसंद करता हूँ. मुझे बचपन से लेके 35 साल का हो गया, वहां तक पता ही नहीं कि बोर होना क्या होता है. एंड आई एम हाईली इंट्रोवर्ट एज फार एज my philosophical thoughts are concerned. But when it comes to my performance, my job, me being a teacher, me being a part of hotel industry, my God, I'm in 150% extrovert then से. So introvert versus extrovert. जब परफॉर्मेंस की बात आएगी तो आपको एक्सट्रोवर्जन जो है उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग आपको जानेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं. तो आप अपनी इंट्रोवर्टनेस को जो है अपनी पर्सनल जीवन तक सीमित रखेंगे. एक्सट्रोवर्जन के बाद जो अगला सेक्शन ऑफ डिस्कशन है दैट इज एग्रीएबलनेस. द डिग्री टू विच अ पर्सन इज नाइस, टॉलरेंट, सेंसिटिव, ट्रस्टिंग, काइंड एंड वार्म. किस दर्जे तक आप टॉलरेट कर लेते हैं दूसरों को, किस दर्जे तक आप ट्रस्ट करते हैं, कितना एग्री कर लेते हैं, वार्मथ कितनी है आपके पास, वो पर्सनैलिटी का एक मेजर चंक जो है उसको क्रिएट करता है. एंड एग्रीएबलनेस के बाद एक छोटा सा नेगेटिव डिस्कशन न्यूरोटिसिज्म पे. न्यूरोटिसिज्म किस डिग्री तक एक इंसान एंग्शियस होता है, इरिटेट हो जाता है जल्दी, एग्रेसिव होता है, टेम्परामेंटल है या मूडी है. तो दीज टाइप ऑफ ट्रेट्स, true sir, ambivert, exactly, thank you for giving the term. So I was willing to mention this concept only. Thank you for this term ambivert. जैसे कि ambi मतलब both, so people can be introvert and extrovert both. Coming back to the previous discussion of mine, इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड आज की टिप्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट. ठीक है, ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है थ्योरी का. neuroticism. The neuroticism is to the extent where you get irritated, आप सिचुएशन संभाल नहीं पाते हैं, आप एंशियस हो जाते हैं, परफॉर्म करने से पहले डर जाते हैं, लोगों से बात करने से पहले घबरा जाते हैं. वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको आपको कवर करना होता है, क्योंकि हमने इस तरह से इसको लिखा that these are a few factors that are to be considered. Now, coming back to the final discussion of ours today, please confirm कि आप लोगों को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है completely screen. Yes. Yes. Yes, sir. All right. How do we make a good personality? सबसे पहली बात, I hope it's visible to all. नेहा प्लीज एक बार फिर कंफर्म कर दो. This slide is reaching Yes, everyone? sir, it's visible. Very good. सबसे पहली बात जो कि सबसे ज्यादा बड़ा मिथक है हमारे इस पूरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की टॉक्स के सिस्टम का, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और उसको ऐसा बनाओ और ये कर दो वो कर दो. फ्रेंड्स, it's not about the looks, not at all. अगर लुक्स की ही बात होती तो जॉनी लीवर हमको इतने पसंद ना होते. आई कंसिडर जॉनी लीवर एज अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी, जबकि जो आपके तथाकथित अंग्रेजों की गुलामी के जमाने की जो मानसिकता के थॉट हैं वो ये कहता है कि भाई गोरा है तो बेहतर है, सुंदर है तो अच्छा है. वो चीजें थोपी गई हैं हम पे, नेचुरल नहीं है. और आज के टीवी एड्स जो कि मतलब फेयरनेस क्रीम्स बेचते हैं और जो वेल डिजाइंड मेकअप वाले मॉडल्स दिखा के आपको बताते हैं कि ये अच्छी पर्सनालिटी होता है,
वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि आप लुक्स जिस तरह के हमें नेचर से मिल गए हैं उन्हें स्वीकार करें। लुक्स के अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है मेरी अपनी वार्मथ, मेरी प्लेजेंटनेस, हाउ आई कम अक्रॉस। So if my personality is pleasant enough, looks do not matter. तो पहला तो ये मिथ जो है इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सुंदर दिखना गुड पर्सनैलिटी होता है, बिल्कुल नहीं। इट्स नेवर अबाउट द लुक, इट्स अबाउट योर पर्सनल वार्मथ, हाउ यू कम अक्रॉस पीपल, हाउ प्लेजेंट यू आर। आपसे बात करके सामने वाले को कितना अच्छा लगता है, दैट इज द मेजर थिंग। अदर थिंग, जब हम बात करने की बात करते हैं तो हमें से ज्यादातर लोग सुनने के लिए बैठे नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, मुझे अपना पॉइंट रखना है, अरे सामने वाले की सुन तो लो। ये आज की हमारी सोसाइटी की, और मैं कोई सोशल मीडिया वाली इंटॉलरेंस जैसी कोई टर्म नहीं देना चाहता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पब्लिक करप्शन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले बहुत सारे समय से, जैसे कि मैं हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, एजुकेशन, इस इंडस्ट्री से डील कर रहा हूँ, द काइंड ऑफ पीपल आई हैव मेट, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हम में से 70-80% लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। सुन के बोलना तो हमारे थॉट्स का ही पार्ट नहीं है। वी डोंट नो व्हेन टू स्पीक, वी डोंट वेट इवन। और दूसरी जो बात मैंने हिंदी में लिखी है, पूर्वाग्रह ग्रस्त होना, ये हम एक बीमारी है जो हमें हर एक के पास है। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं हम। वो नेहा है तो वो जो है वो डीजल कार्स की बुराई करती है, तो मेरी गाड़ी की बुराई करेगी। वो बोलती है कि पेट्रोल कार अच्छी होती है। मैंने पूर्वाग्रह बना रखा है क्योंकि मैंने सुन लिया था किसी को उसको डीजल कार की बुराई करते हैं। तो मैंने जो नई गाड़ी खरीदी, अब जो है मैं नेहा को उसकी मिठाई नहीं खिलाना चाहता। मैं पता है नेहा तो बुराई करेगी, ये पूर्वाग्रह है। क्या पता वो ये कहने के लिए बैठी हो कि अरे सर, ये ग्रे कलर आपकी गाड़ी में बहुत सूट करता है, पर मैं तो सुनना ही नहीं चाहता उसकी बात। पूर्वाग्रहों से हम बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा हमने अपने आप को इस तरह का बना लिया है समय के साथ कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज रखना चाहते हैं, सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की बजाय। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेप्स में से है ये। पहला था ये रियलाइज करना कि लुक्स पर्सनैलिटी नहीं होते, आपका प्लेजेंट होना पर्सनैलिटी है। और दूसरा ये कि आपको बोलने से पहले सुनना है जी। मुंह एक मिला है कान दो, किसी बड़े संत ने कहा है। तो जो चीज दो मिली है, मतलब उसका यूज ज्यादा है ना, उनको यूज करना है। ये मेरी लाइन्स नहीं है, मैंने कॉपी करी है, शायद श्री दलाई लामा ने कही होंगी। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये है तो आप एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी हैं, ये नहीं है तो रहने दीजिए। फाइंड आउट द लीडर इन यू, आर यू एबल टू लीड। और मैं पहले से क्लियर कर दूं, लीडर नेचुरल होता है, कोई पोस्ट नहीं होती लीडर। मैं मेरी कंपनी में जो है मैनेजर बन गया तो अब लोग मेरी सुनेंगे मैं लीडर हूं ना, बकवास है ये। लीडर नेचुरल होता है, लीडर वो है जिसको लोग स्वेच्छा से फॉलो करना चाहें। एक बहुत सुंदर मेरे को लाइन्स याद आ रही हैं, दिनकर जी ने लिखी हैं रश्मि रत्ती में। चाहे कुछ भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। तो आराध्य वीर कौन है जनता का? वो जो कि नेचुरल लीडर है। और नेचुरल लीडर के पास ये एक वर्च्यू जरूरी है जिसको हम बोलते हैं साहस। एक मनुष्य का सबसे बड़ा गुण जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ करेज है, क्योंकि करेज ही है जो कि आपको डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करती है। आप साहसी नहीं है तो आप निर्णय नहीं ले सकते जी, क्योंकि निर्णय के साथ गैम्बल आता है कि निर्णय सही होगा या गलत। और वो लोग जो कि गलत निर्णय का भार अपने कंधों पर ढोने की इच्छा नहीं रखते, वो निर्णय लेते ही नहीं। अब इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से मैं ये नहीं कह रहा आपको कि बिल्कुल ही आप तोपे चला दें और दुनिया बदल दें। मैं अपने सब्जेक्ट पे लेके आता हूँ उसको। आज हम जो बात कर रहे हैं करेजियस होना, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सर। आप लोग एक
4 दिन की वर्कशॉप में जाते हैं। डॉक्टर्स का एंसेंबल है, कुछ कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कोई डेंटिस्ट की कोई मशीन आई है, या कुछ ऑपरेशन के लिए कोई नए टूल्स आए हैं वेटनरी साइंस में। यू अटेंड दैट वर्कशॉप फॉर 4 आवर्स, 4 डेज लेट्स से। और चौथे दिन में एंड में जो कल्मिनेशन सेरेमनी होती है, जहां आपको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, उस दिन वो सब होने के बाद वहां के जो होस्ट हैं आपसे कहते हैं कि आप में से कोई आगे आके बोलना चाहेगा, 4 दिन का प्रोग्राम कैसा रहा। यकीन मानिए सर, आप 1.5 दर्जन लोग मेरी बात सुन रहे हैं आज, हम में से 90% लोग नीचे मुंह कर लेते हैं कि मुझे ना बुलाने बोलने के। और यहाँ सारा डिफरेंस आता है डेवलप्ड पर्सनालिटी और अंडर डेवलप्ड का। क्योंकि वो पर्सोना जो कि अपने आप को डेवलप करना चाहता है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ेगा। दैट इज वेयर डिसीजन मेकिंग कम्स इन प्लेस। मैं मेरे ग्रुप के यहाँ बिहाफ पे बोलूंगा या बोलूंगी, ये मेरा उस समय डिसीजन होना चाहिए। और जैसे ही एक होस्ट ने कहा कि आप में से कौन बताना चाहेगा पिछले 4 दिन आपका अनुभव कैसा, उठो ना सबसे पहले यार, लो ये डिसीजन और जाके बोलो, और नेचुरल बोलो बिल्कुल। ये सारा इंग्लिश, हिंदी, फ्लो, कम्युनिकेशन सब आ जाता है मेरे साथ। कोशिश तो शुरू करो, और वो कोशिश करते ही आप उस ग्रुप के लीडर बन गए, क्योंकि लोग तुरंत आपकी सत्ता स्वीकार कर लेंगे फिर कि यार इसने हमारे बिहाफ पे बोला था। करेज इज पावर पीपल, करेज इज पावर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय टुडे प्रेजेंटेशन। इससे ज्यादा जरूरी मैं किसी भी चीज को नहीं समझता हूँ। फाइंड आउट द लीडर इन यू। छोटी छोटी चीजों में लीडरशिप लेना, फिर चाहे वो गली के क्रिकेट का एक मैच हो या किसी कॉन्फ्रेंस में अपने ग्रुप के बिहाफ पे बोलना। ये बहुत कमाल की चीज है। अगली, सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ प्लस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो और सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो तो सर डेवलप्ड पर्सनालिटीज की बात ही नहीं होती। I'll tell you an example of mine, people. I was a very frustrated youth, a very frustrated young teacher, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट जैसी जॉब पे 6-6.5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में काम कर रहा था। मैं परमानेंट जॉब मेरी लग नहीं पा रही थी, क्योंकि 3-4 साल कुछ गवर्नमेंट के रूल चेंज, रिक्रूटमेंट रूल चेंज, ऐसे कुछ इशू थे। और फिर उसके बाद जब ओपनिंग्स खुलने लगी तो somehow I could not perform well, और 50 फैक्टर आपको पता है सरकारी नौकरी में रहते रहे होंगे। I was quite frustrated. I was married for last 3 years and I did not have a job which pays me well. उस फ्रस्ट्रेशन के समय में भी मैं आपको उस जॉब इंटरव्यू एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से मेरी पहली जो गवर्नमेंट जॉब है मैंने क्रैक की। आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ माई रिटर्न एग्जाम मार्क्स। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे रिटर्न में कितने आए हैं, और इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि मैं 5th रैंक पे था। सीटें 3 थी जनरल में और मैं 2nd रैंक आया हूँ। रिटर्न में 5th रैंक था, सीटें 3 थी, मैं 2nd रैंक आया हूँ। वो 2nd रैंक आने की कहानी सुनाता हूँ। उस फ्रस्ट्रेशन के समय में जब मैं डेस्परेट था, और डेस्परेट होने पे आपको चीजें नहीं मिलती, ये ह्यूमन साइंस बोलता है भाई, हमारे एक्सपीरियंस बोलते हैं। पर वो डेस्परेसी पे कंट्रोल करके इंटरव्यू के समय में मैंने कुछ ऐसा किया, और वो कुछ ऐसा जो है ना, वो सेंस ऑफ ह्यूमर था कंप्लीटली। आई वाज गिवन टास्क बाय द आईएएस ऑफिसर कंडक्टिंग आवर प्रोसेस। शी वाज द हेड चेयर ऑफ कोर्स। तो हमारे एक स्कीम चलती है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, हुनर से रोजगार, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जिसमें कि हम 2-2.5-3 महीने के शॉर्ट कोर्स कराते हैं, लोगों को जॉब के लिए एम्प्लॉयबल बनाते हैं कि अपना छोटा मोटा काम करते हैं। केंद्र सरकार की स्कीम में बहुत पैसा खर्च किया सरकार ने, करोड़ों अरबों रुपए। तो द चेयरपर्सन द आईएएस, शी सेड कि सौरभ आप हुनर से रोजगार जो स्कीम है उसके बारे में क्या जानते हो? मैडम मैं अपने कॉलेज में जो है उसको कोऑर्डिनेट करता हूँ, अदर देन रेगुलर डिग्री क्लासेस में वो वाला काम भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका टास्क यही है कि हम, आप मान लीजिए कि हम 10th पास बच्चे हैं और हम में से आधे 8th पास हैं, जयपुर जिले के किसी बहुत ही इंटीरियर गांव के किसी सरकारी स्कूल के। आप हमको ये अपना प्रोग्राम जो है सेल करके बताइए और हमारा एडमिशन लीजिए आप। अब ऑफ कोर्स उस समय पे कोई भी इंसान वही करेगा कि ये होता है, वो होता है, अपनी स्कीम्स को बड़ा चढ़ा के बोलना। मैंने भी वही किया, बहुत अच्छा किया ऑफ कोर्स। पर उससे पहले जो मैंने किया, एक छोटा सा सेंटेंस,
मुझे 1 मिनट दिया गया था प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर किया, अपना सीक्वेंस बनाया। देन आई gathered the attention of the head of the interview panel. मैंने कहा मैम मैं फिर से रिकन्फर्म करना चाहूंगा, आप सब 10वीं और 8वीं पास बच्चे हो ना? उन्होंने कहा हाँ जी सौरभ। और ये सब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। और मैं कहा फिर आप जयपुर के किसी कोने में एक गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हो? अभी तक बात सारी इंग्लिश में रही। उन्होंने कहा हाँ जी सौरभ। इतनी इंग्लिश के बाद एक सेंटेंस मेरा हिंदी में आता है। मैं कहा तो फिर आप अंग्रेजी तो समझोगे नहीं। एंड ऑल द इंटरव्यू पैनल लाफ्स। ये बात तो सही है यार तेरी। मैं कहा चलो बच्चों अब आपको हिंदी में समझाता हूँ। That was not my overconfidence. That was simply my sense of humor, which showed that I am confident in my job. I am not saying that I am a very high-fi performer. I am just telling an incident of my life. This is how I secured a job for myself. Just using a simple phrase in such a manner that I proved to the panel that I'm quite developed as far as sense of humor is concerned. So this is one of the most important key things. और आज के टॉपिक का लास्ट डिस्कशन दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी, स्टे हेल्दी एंड फिट। इसके अलावा तो कुछ जरूरी है ही नहीं। आप हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है और पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने की बात करेंगे, सब फालतू की बातें। हेल्दी का मतलब मैं सिर्फ मेंटल फिटनेस सॉरी फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेंटली फिट भी होना मतलब अपने विचारों को आप हेल्दी बनाएं, आप अपने थॉट्स को फिट बनाएं, आपके विचार प्रगाढ़ हों। और फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें तो इफ यू आर फिजिकली फिट, आई एम टेलिंग यू, यू आर बेटर देन 80% ऑफ द लॉट। परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल दुनिया में हर जगह चलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 80% लोग जो हैं बाकी के 20% के किए हुए काम की तनख्वाह लेते हैं। किसी भी बिजनेस में 80% सेल जो हैं दिन के 20% टाइम में आती है। सिमिलरली आप थोड़ा सा भी अगर बेहतर हैं, थोड़ा सा भी अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखते हैं, तो आप 80% लॉट से उठ के ऊपर के 20% में आ जाते हैं। और दुनिया तो 20% ही चला रहे हैं, नहीं बाकी 80% इनका किया हुआ खाते हैं। तो डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज 80, बी अ पार्ट ऑफ दी अपर 20। और मैं फिर से बता दूं, पतला होना फिटनेस नहीं है, सिक्स पैक एब्स ही फिटनेस नहीं है। आप जैसे हैं वैसा आप अपने आप को कैरी करना सीख लें, वो फिटनेस है। फिटनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्ले गेम्स, रीड बुक्स, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। हेल्दी रखो अपने आप को मेंटली फिजिकली, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिटनेस और गेम से मेरे को एक और चीज याद आई, गेम थ्योरी। आप स्पोर्ट्स में अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, इट विल हेल्प यू। गेम्स के लिए कहा जाता है दैट गेम्स हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर and even to help moral dilemmas, even to help unravel moral dilemmas. That is the game theory. गेम्स इतने इंपॉर्टेंट है लाइफ में हमारे। ह्यूमन बिहेवियर और मॉरल डिलेमास को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्पोर्ट्स और गेम्स जैसी चीजें यूज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था शुरुआत में सेशन के कि एक दोस्त की बाइक लेके गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाउ आई वांट हिम टू बिहेव। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्रिकेट का या फुटबॉल का मैच हो रहा है, दो दोस्त आपस में टकरा गए। अब टकराने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एक दूसरे का हालचाल पूछें और ठीक से बिहेव करें। बट 90% ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, घूर के देखते हैं एक दूसरे को, तेरी वजह से मेरे चोट लगी, व्हाट इज दिस? It is not a developed personality at all. You have not worked upon your social behavior then. It is up to you to decide आपको वो नीचे वाले 80 में होना है या ऊपर वाले 20 में होना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं आज तक till the age of 35-36 I have been playing cricket regularly and I see it happening. फील्डिंग करते टाइम दो लोग एक दूसरे से भिड़ गए तो घूर के देखते हैं एक दूसरे को। क्यों भाई? घूर के देखने के बजाय एक दूसरे से पूछो, आर यू ओके मैन? That is the pitch of mind today, that improve upon your social behavior, interaction with other humans, your interaction with world. That is the basic of personality development. इसके बाद की जो बातें हैं
हाउ डू वी ग्रूम आवरसेल्फ, हाउ डू वी टॉक, इंग्लिश क्या होती है, फ्रेजेस क्या होती हैं, मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, इनकी बातें आगे किसी और सेशन में करेंगे. So I hope you do that all, and I congratulate those who joined today's session because you love yourself. That is why you are here. You love yourself. That is why you want to enhance upon your personality. You know, the most important sale in life is to sell yourself to yourself. और हम शुरुआत में सेशन में बात कर चुके हैं कि दुनिया है तो मार्केट ही में, मार्केट और पैसा इनके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है. तो आप जो सबसे बेहतर सेल्स डील कर सकें वो ये कि आप खुद को बेच पाएं. सोच के देखिए क्या आप खुद को खरीदना चाहते हैं. आर यू वर्दी इनफ? That was the pitch of the day from my side. Questions, if any? If not, I thank you for your attention. Yeah, I am available now, Dr. Rahul and team. Thank you, sir, for enlightening us with your thoughts. We learned how to interact and respond the very great platinum rule and golden rule to find out the courage and to be decision making in future. Thank you so much, sir. So we'll come to Dr. Nanda Kumar's question here. सर ने पूछा था social and personal constraints, sorry, play major role in developing one's personality. Of course, sir, I do agree. Do you think it will result in development of good personality or entirely different? सर सोशल और पर्सनल कंटेंट्स जो है, आई एग्री विद योर थॉट कि बहुत ज़्यादा ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना हम पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं. पर क्या है सर कि हर जो इंसान है वो अपने आप में खुद एक यूनिवर्स है और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इतना बड़ा नहीं है कि आपके इंटरनल फैक्टर्स को सप्रेस कर पाए. एक पेरेंट्स के 3 बच्चे या 4 बच्चे, चारों को सेम शिक्षा, सेम घर का वातावरण, सेम रिश्तेदार सब मिलता है, ये चारों इंटरनल डिफरेंट मिलते हैं. चलो मान लिया कि चारों की उम्र अलग अलग थी, उस केस को भी नल अवॉइड कर देते हैं. मान लेते हैं कि 4 में से 2 ट्विन के जोड़े थे, तो दोनों ट्विन भी एक जैसे नहीं होते, जबकि उनके दोस्त भी सेम, क्लास भी सेम, स्कूल भी सेम, रिश्तेदार भी सेम, घर में एसी भी सेम, फ्रिज भी सेम, गाड़ी भी सेम, बाजार भी सेम. अब समस्या क्या है? समस्या है इंटरनल एनवायरनमेंट की, मेरे अंदर का यूनिवर्स कैसा है. तो मेरा सबमिशन इस क्वेश्चन के आंसर में ये है कि ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत बड़ा असर डालते हैं, पर वो इंटरनल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. अंततः तो हम अपनी पर्सनालिटी खुद अपने इंटरनल यूनिवर्स से ही डिजाइन करते हैं. अब मेरे सामने एक बुक पड़ी है प्रेमचंद की गोदान, और मेरे एक सामने एक डीवीडी पड़ी है रंग दे बसंती. ये मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट इतना जो मुझे बताया कि मुझे गोदान पढ़नी चाहिए या रंग दे बसंती देखनी चाहिए. हालांकि दोनों ही अच्छी चीजें हैं, पर ये छोटे छोटे डिसीजंस मेरा एंड प्रोडक्ट में कैसा बनूंगा उसको डिसाइड करते हैं. इट्स कंप्लीटली, आई मीन द इंटरनल एनवायरनमेंट विल डोमिनेट सर. मतलब मेरा सबमिशन ये है, आप हो सकता है मुझसे एग्री डिसएग्री करें. आई विल रियली नॉट माइंड दैट. Thank you, sir, for such an awesome webinar. So, Dr. Deep is asking how to balance social behavior and personality in professional life and personal life. Wow, lovely. Thank you for such a brilliant question. Sir, Dr. Deep is sir, right? Yeah, Dr. Deep. Hello, sir. I am a veterinary student from first year from Gujarat, sir. Oh, thank you for connecting, Deep. Thank you so much. And it is a brilliant question, दोस्त. Personal life और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें अपने सोशल बिहेवियर और पर्सनालिटी को कैसे बैलेंस करना है. तो सर इसमें देखिए ऐसा है, बैलेंस जो है ना, बहुत ही मैथमेटिकल टर्म है कि इधर 500 ग्राम रख दो, इधर 500 ग्राम रख दो, बैलेंस है. लेकिन हम लोगों की जो लाइफ है ना,
वो हर 24 घंटे में बैलेंस नहीं होती सर। प्राइमरीली वी हैव टू एग्री दैट वी आर ह्यूमंस नॉट मशीन्स। तो हम कोई पीरियोडिक रिजल्ट नहीं दे सकते दोस्तों। हम किसी एक काम में अच्छा होकर अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते कि हम कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फोटोकॉपी मशीन है, तो फोटोकॉपी कितनी अच्छी निकालती है उस पर उसको तय किया जाता है मशीन अच्छी है या नहीं। एक क्रिकेट की बॉल है, कितने ओवर तक उस बॉल को फेंक पाते हो उसे तय किया जाता है कि बॉल अच्छी है या नहीं। ह्यूमंस मशीन्स नहीं है। हम किसी एक दो काम में अच्छे नहीं होते, हम एक कंप्लीट पैकेज होते हैं। तो कभी कभार आई हैव कम अक्रॉस अ फ्यू ह्यूमंस who are so good at their work, so good. But I have seen that their families suffer. That is not balance. I have seen a few humans which are so bad at their work. ऑफिस लाइफ बिल्कुल ही खराब, और क्या बोलते हैं फ्री की तनख्वाह तोड़ने वाले लोग। परिवार बहुत खुश है जी, लेकिन ये दोनों ही कंडीशंस खराब है, ओवरऑल पैकेज अच्छे नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है दीप जी, आपको अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे देखना है, खुद से बाहर निकल के कि ओवरऑल एज ए ह्यूमन पैकेज में कैसा हूं मैं। मेरे दोस्तों में कमियां निकाल देता हूँ, उनको मुंह पे टोक देता हूँ। वो तो कुछ गलत कर देते बोलता हूँ मत करो, वो कोई प्लान बनाते हैं बोलता हूँ मैं नहीं जाऊंगा। 50 चीजें हैं मुझ में। लेकिन मेरे कभी किसी दोस्त को जरूरत होती है तो पिछले 30-35 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मुंह से ना निकला हो। मैंने ना बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तो मैं एक फ्रेंडशिप का पैकेज इनका आंसर में सबमिशन ये है कि हम 24 घंटे में बैलेंस नहीं कर सकते, एक महीने में बैलेंस नहीं कर सकते। हम ओवरऑल जर्नी जो है हमारी, और हम एक कंप्लीट पैकेज हैं। हम में कुछ कमियां हैं, हर एक इंसान में, आप में भी होंगी, मुझ में भी हैं, और कुछ बहुत सारी अच्छाइयां हैं, आप में भी हैं और मुझ में भी हैं। तो अच्छाइयों और बुराइयों का ओवरऑल जो बैलेंस है उस पर आप आज से ही ध्यान देना शुरू करें कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरह का पिता बनना चाहेंगे आज से 15 साल बाद। आप अपने करियर में 60 की एज में रिटायर होते हुए किस तरह की थॉट्स के साथ रिटायर होना चाहेंगे कि लोग आपके रिटायरमेंट पे तालियां बजा रहे हैं खुश होके, या तालियां बजा रहे हैं ये सोच के कह रहे यार इस इंसान को जाना ही नहीं चाहिए। यू डिजाइन टुडे, यू थिंक टुडे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे तो उसका एक बहुत बड़ा तकलीफ ये है कि आपको खुद को बहुत परेशानियां और समस्याएं उठानी पड़ेंगी। कोई भी अच्छाई बिना परेशानी के नहीं आती। मुझे आज विशाल जी के लिए बर्थडे केक लेके जाना है, विशाल रामी जी हमारा लेक्चर में, तो मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी। नीचे जाऊं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करूं, एक बेकरी को फोन करूं, केक लेके जाऊं, फिर जाके विशाल जी को फोन करूं, भाई मैं केक लेके आ रहा हूं, अवेलेबल रहना। एक पर्सनल ट्रबल है जो मुझे लेना पड़ेगा कुछ भी अच्छा करने के लिए। तो आप आज अपनी इस उम्र में डिसाइड करें कि एट द एंड ऑफ योर करियर हाउ डू यू वांट अदर्स टू सी योरसेल्फ। और आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा समझें, तो आप जी मुश्किलें उठाने के लिए तैयार हो। आराम से तो अच्छाई नहीं होती, ये फैक्ट है जीवन का। और आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये दूसरी बात। बैलेंस जो है, अगर आप ये सोचोगे कि बाहर से कोई आदमी डिसाइड करे कि मेरी लाइफ बैलेंस या नहीं, नो, यू योरसेल्फ आर अ डिसाइडिंग फैक्टर। डॉक्टर दीप नाई, आप खुद तय करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपका ही जीवन है ना। तो आई होप कि मैं कुछ हद तक आपके क्वेरी को कवर कर पाया हूँ। पूरा आंसर तो मैं जानता हूँ कि मैं नहीं दे पाया क्योंकि आपने बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सर, मैं समझ गया, थैंक यू। विशाल सर के पूछ रहे हैं डॉक्टर राहुल। Next question by Vishal. Sir, is first impression a last impression true or it's a myth? विशाल जी, इन केस ऑफ इंटरव्यूज ये ट्रू है, बट इन केस ऑफ जनरल लाइफ ये मिथ है। क्योंकि मैं क्लास में जाता हूँ, एक बहुत बड़े टीचर हैं उनकी,
और पहली क्लास में मुझे ये समझाते तुम सब नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा लाइफ में, और क्लास के बाहर आके हम बोलता अरे यार डीमोटिवेटिंग लेक्चरर, आई शुड नॉट बी जॉइनिंग एनी ऑफ हिज फर्दर क्लासेस, कहीं और जाता हूँ। और फिर मैं 1-2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि उन सर के जो है पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं और लाल बत्ती की गाड़ी से उतर रहे हैं और बताते हैं कि मुझे तो जो कुछ बनाया इन सर ने ही बनाया है। बदल गए मेरे विचार लोग। फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत खराब था। फिर पता चला कि भाई ये आदमी हथौड़ा मार के इंसान बनाता है। बदल गया फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, पर विशाल जी, इंटरव्यू जैसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास समय ही बहुत कम है और पता नहीं आप इंटरव्यू और इंटरव्यू दोबारा मिलेंगे या नहीं, वहाँ फर्स्ट इंप्रेशन, लुक्स एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द फर्स्ट 3-4 सेकंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जनरल लाइफ में मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इज लिमिटेड। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात सच साबित होती है। अदरवाइज नो, लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट वन इंप्रेशन, इट्स अ सीरीज ऑफ रिपीटेटिव इवेंट्स। बार बार होंगी चीजें, लूप में होंगी, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। प्लीज डोंट बॉदर अबाउट योरसेल्फ, डोंट बॉदर योरसेल्फ अबाउट सच थॉट्स कि एक बार गड़बड़ हो गई तो लास्ट इंप्रेशन हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। I hope that I have been able to convey you in the right sense. Thank you, sir. Vishal ji, Any other queries? Thank you, Vishal. Nanda Kumar BN ji, thank you so much. Thank you, sir. Thank you to all the audience for listening. Apologies, Thank you, everyone. नेहा एंड मैंने आप लोगों ने जो समय दिया था उससे जो है मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया। आई एम सो सॉरी, और आपकी पूरी It's ऑडियंस all right, को sir. इतना समय तक रोक के रखा। काइंडली एक्सक्यूज मी, आई गॉट कैरिड अवे। टीचर हूं ना यार, फिर वो रहा नहीं जाता पूरा बोलना। Sure, sir. One more question is there. Divakar is asking, sir, how to handle any awkward situation which does not supposed to happen. सर ये कंप्लीट सेशन दिवाकर, अगली बार हम करें कुछ दिन बाद। दिस विल बी ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे, ऑकवर्ड सिचुएशंस वगैरह। तो आप मुझे थोड़ा समय दें, मतलब आज क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करना तो मुश्किल होगा। शॉर्ट में आपको मैं एक लाइन में समझाता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री हूँ जहाँ भसड़ बहुत ज्यादा होती है। भसड़ इज ऑफ कोर्स ए नेगेटिव टर्म, और आप लोग प्लीज गाली गलौज की तरह ना लें, हम होटल वाले इसको बहुत यूज करते हैं। भसड़ का मतलब होता है रश, कि मतलब सामने 50 गेस्ट खड़े हैं, 4 का खाना बन गया, 46 का तैयार नहीं है और उनको अगले 5 मिनट में देना है, उसको हम बोलते हैं भसड़। तो मेरी इंडस्ट्री में काम बहुत होता है। हमें एक चीज बहुत करियर के शुरुआती दिनों में समझा दी गई थी कि भैया आग लग जाए, बम फट जाए, तुम्हारे चेहरे में परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो यही मंत्र मैं आपको भी देता हूँ। कुछ भी हो जाए आपके सामने, एनी सॉर्ट ऑफ ऑकवर्ड सिचुएशन, और ऑकवर्ड सिचुएशंस इन दिस वर्ल्ड आर इन्फिनाइट। हम सोच नहीं सकते ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस होती हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एग्री दैट द सिचुएशंस व्हिच आर नॉट सपोज्ड टू हैपन, बट दीज हैपन। दैट इज द इन। बस एक चीज याद रखना अगले सेशन तक, जब तक हम इसी डिटेल में डिस्कशन नहीं करते, ये याद रखना कि कुछ भी हो जाए, डू नॉट कीप योर काम, डू नॉट कीप योर कूलनेस, सॉरी कीप बोलो, डू नॉट लूज, सॉरी आई एम सॉरी, रॉन्ग इंग्लिश बाय माय, आई गॉट कैरिड अवे। डू नॉट लूज योर काम, कीप योर काम। डू नॉट लूज योर कूलनेस, कीप योरसेल्फ कूल। क्योंकि आप, मैं बहुत ही श्योर हूं कि आप सबॉर्डिनेट की बजाय बॉस बनेंगे अपनी जिंदगी में। द काइंड ऑफ कोर्स यू आर परस्यूइंग, जिस तरह से आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आपका करियर मुझे पता है बहुत वंडरफुल होने वाला है। आप वो होंगे जिनके नीचे 20-30 लोग काम करेंगे। तो ये चीज आप बचपन से ही खुद को समझा लीजिए कि अगर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हम अपना काम लूज करते हैं तो हमारी टीम ने, समझ लो, उसी समय हथियार डाल दिए। सेना की तलवार अगर छूट गई तो भाग जाएगी जी मैदान छोड़ के। तो अभी के लिए मेरा शॉर्ट सा आंसर ये है कि कैसी भी सिचुएशन हो, अपना हेड लूज नहीं करना, नॉर्मल खड़े रहो, थोड़ी देर में अपने आप सब नॉर्मल हो जाता है। अजीब से अजीब सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाती है थोड़ी देर में।
Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining the session. So it is time to conclude this session. Thank you. Thank you.